Okay. Good afternoon, class. So in the previous class, we talked about the data, what are the different data types, and how can we, what is data analytics, what is data analysis, what are the different types of data analytics. In the so it's like we completed lesson one of your SLM. In today's class, we'll start with lesson two and we'll see what are the some exploratory some of the tools that are available for exploratory data analysis. If I talk about exploratory data analysis, I have descriptive statistics which describe what the data is all about. It includes mean, finding out the average, finding out the median, mode, standard deviation, percentile, quartile. Second data analysis is distribution analysis, wherein we talk about how the data is distributed, what are the different values, is it like every student of a class of 1000, everyone has scored 95 marks. So this is not a normal distribution. It is not possible that every student scores 95 marks. Even this is not possible that every student scores 40 marks. ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई हर only 5-10 students are passed out of the 1000 class and the rest have scored 40% marks. So this is how we analyze the data. We call it as distribution analysis. Third tool is the correlation analysis. Correlation analysis, it identifies, it quantifies the degree of association. One variable is dependent on the other variable. For example, cost of a house will increase if uh, if it is located uh, in a well established location, right? Cost of a house will increase if the size of the house increases. Cost of the house increases if the number of rooms increases. Similarly, cost of the house will definitely decrease if its size decreases. So we need to Hello, ma'am. variable. One fourth type of data analysis tool is data visualization. We draw graphs, we draw scatter plots, we draw histograms, and we visualize it. We visualize the data how it is spread out, right? And the fifth type of exploratory data analysis is pattern recognition. It is basically done using time series. We identify what is happening, how the temperature of a day is changing uh, every hour, right? How the temperature of how the temperature of a day changes every month. So we identify certain patterns. We can say that temperature is lower in the early morning, temperature is lower in the late evening, temperature is very high during the afternoon. So this is how we identify certain patterns using pattern recognition tools like time series analysis, spatial analysis, cluster
मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है? आप यस मैम आ रही है। हेलो। तो कहाँ से मिस हुआ है आप लोगों को? ये आप लोगों को यहीं से बताओ। यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। So I was talking about exploratory data analysis. What are the different tools? हमको डेटा एनालिसिस के कितने ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। राइट। पहला डेटा एनालिसिस टूल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द डेटा ऑल अबाउट, डेटा क्या है, व्हाट इज इट्स एवरेज, एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज सेल्स ऑफ अ लोकेशन क्या है। एक सेल्स मतलब अगर किसी जगह पे एक प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है तो व्हाट इज द एवरेज सेल्स, what is the median, what is the mode is like what is the size of a shirt which is being sold in higher numbers। एक अगर मुझे शर्ट सेल करनी है तो उस शर्ट की साइज, ऐसा कौन सा साइज है जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। इट कुड बी मीडियम और इट कुड बी लार्ज। स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल की सेल कम होगी। अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, 3 एक्सएल, 4 एक्सएल, इसकी सेल कम होगी। सबसे ज्यादा शर्ट्स किसमें हो रही हैं? मीडियम एंड लार्ज, राइट। So I want to know what the data is all about. Second is your distribution analysis. Distribution analysis is your how your data is spread out. ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ जो शर्ट्स हैं सिर्फ मीडियम की ही सेल हो रही है, मीडियम साइज की ही शर्ट्स बिक रही है। स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा, उनकी शर्ट्स ही नहीं सेल हो रही है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सिमिलरली ऐसे नहीं हो सकता कि एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चे के 95 मार्क्स हैं या हर बच्चे के 40 मार्क्स हैं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। So we identify how the data is spread out. We call it as normal distribution or the distribution analysis. जनरली जो परफेक्ट डेटा होता है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि डेटा, कुछ डेटा, मैक्सिमम डेटा मीडियम में होता है और जो आपके कुछ कम अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कि स्मॉलर अमाउंट में स्प्रेड आउट होता है। Third tool is your correlation analysis. Correlation analysis, it quantify the degree of linear association. Now, what is the quantification of the linear association? How one variable is dependent on the second variable. आपका एक variable है वो दूसरे variable पे कैसे depend कर रहा है। For example, cost of a house. आवर मतलब अगर मैं एक बिल्डिंग बना रही हूँ, इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को अगर बनने में 1 ईयर लग रहा है तो और मुझे उस 1 ईयर को मुझे सपोज अगर 6 मंथ पर रिड्यूस करना है, सो व्हाट आई कैन डू, कैन आई इंक्रीज द मैन पावर, कैन आई इंक्रीज द क्वालिटी, कैन आई improve the quality of the construction material, how will it depend। फोर्थ टूल टू स्टडी डेटा इज योर डेटा विजुअलाइजेशन। हम डेटा को बार ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, हिस्टोग्राम में प्लॉट कर रहे हैं, स्कैटर प्लॉट में बना रहे हैं। so that is your data visualization। another, the fifth tool to study exploratory data analysis, to study the data for exploratory data analysis is your pattern recognition।
हेलो। So I was talking about pattern recognition कि हम लोग कैसे डेटा में से पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं. It is like how the temperature of a day is varying. एक दिन का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है. What is the pattern for it? Like in summers, it will be hotter. Every year it will be hotter. ऐसा नहीं होगा कि 2023 में तो summers were in May, June and July. एंड एक साल के बाद 2024 में जो समर्स हैं वो दिसंबर जनवरी में हो जाएंगे. इट इज नॉट एट पॉसिबल एटलीस्ट इन इंडिया और इन अ लोकेशन लाइक दिल्ली. सो वी आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न फ्रॉम द डेटा. इट इज लाइक कि हमने एक छोटे से सैंपल से एनालाइज किया कि इस लोकेशन पे टेम्परेचर जो है इस मंथ में ऐसे चेंज हो रहा है. दिस इज द समर सीजन, दिस इज द विंटर सीजन. Here the nights are cold, days are warmer. जो टेम्परेचर है वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में थोड़ा कम होता है और आफ्टरनून में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई दी पैटर्न इन अ डेटा. So we are moving on to now lesson number 2, which is statistical foundation and Python libraries. Hello. जी मैम. With this, we are starting lesson number 2 of your SLM, which includes what are the various measures of central tendency, what are the measures of dispersion, correlation analysis, and Python library. We want to study statistics so that we can it is not possible कि हम लोग पूरे के पूरे लार्ज डेटा सेट को स्टडी कर सके. फॉर एग्जाम्पल 1 lakh students of a class, right? Not possible. So what we do, we take up a smaller part of it. 1 लाख में से हमने 100 बच्चों का डेटा ले लिया रैंडमली. ठीक है, उस डेटा को हम बोलते हैं सैंपल. और जो कंप्लीट डेटा सेट है या बिगर पार्ट ऑफ डेटा सेट है, वी कॉल इट एज पॉपुलेशन. नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट डेटा वी कॉल इट एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल 100 डेटा सेट में से 100 स्टूडेंट्स के डेटा में से हम जब स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मोड, वी कॉल इट एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट. उन 100 बच्चों के डेटा सेट से हम ये इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि बाकी के रिमेनिंग 1 लाख स्टूडेंट्स का के मार्क्स का एवरेज क्या होगा, व्हाट विल बी द मीडियन, व्हाट विल बी द मोड. We call it as inferential statistics. So descriptive statistics, we are describing a smaller set of the data or a larger part of data. Whereas inferential statistics, हमारा complete जो data set, हमारा जो small set of data है, sample data है, उस sample data में से हम बाकी पूरे data set के बारे में कुछ predict कर रहे हैं, कुछ guess कर रहे हैं, then it is called as a inferential statistics. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल in the year 2023 the temperature of the day temperature in May
मई में जो टेम्परेचर है इट इज अबाउट 40, 45, 46, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो आई कैन इंफर दैट कि दिल्ली में जो अगले साल है 2025 में, 2026 में या 2023 में, 2022 में, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल के बाद, कि मई में जो टेम्परेचर है वो 40 के ही अराउंड होगा, 40 के आसपास ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 10 साल से, अगर ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास ये डेटा सेट है जो ये बता रहा है कि मई में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो अगले साल भी वो 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि डेटा सेट इज सेइंग कि टेम्परेचर इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस और अब अगले साल जो है वो 40 डिग्री ना होके 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पिछले 5 साल का डेटा बता रहा है कि मई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली रीजन में, तो इन्फ्लुएंस ये होगा कि अगले साल भी मई में गर्मी होगी दिल्ली रीजन में। इट इज नॉट पॉसिबल कि मई में जो है ठंड हो जाएगी एकदम से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, राइट। अगेन में एक और डेटा, सपोज एसीज की सेल मार्च और अप्रैल में इंक्रीज होती है पिछले 5 साल से, तो आई कैन इन्फर, मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि अगले साल भी या अगले 2 साल भी एसीज की सेल मार्च और अप्रैल में इंक्रीज होगी, जबकि नवंबर दिसंबर में एसी की सेल नहीं होगी। ठीक है, so this is how we can infer about data. So descriptive statistics, we have 3 types. One is your measures of central tendency, second is your measure of spread, and third is correlation and covariance. Measures of central tendency is your mean, identifying the average, calculating the median, finding out the mode. Now mean is the average, हम सारे डेटा सेट की वैल्यूज को ऐड करते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। मीडियन होता है हमने डेटा को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उसमें जो बीच में जो वैल्यू है वो ले ली। इफ इट इज ऑड तो एक ही वैल्यू होगी, अगर टोटल नंबर इवन है तो 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो बीच में है और फिर हम उनका एवरेज निकालते हैं। So this is median. Mode is the value that appears most frequently. Mode एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है। जैसे यहाँ पे आप देखें इस डेटा सेट में 2, 4, 6, 4, 8, मोड हेयर इज 4। 4 इज द वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा बारी डेटा सेट में अपीयर हो रहा है, राइट। Now there is a formula which is formula which between mean, median and mode. This is not like this mean, median and mode. What is the relation between these 3 values for a data set? So we can say that twice of the mean plus mode is equals to thrice of the median. So this is the formula. अगर मेरे पास mean और मोड गिवन है तो मैं मीडियन निकाल सकती हूँ, मेरे पास अगर मीडियन और मोड गिवन है तो मैं मीन निकाल सकती हूँ। तो इस राइट, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि मीन एंड मोड ये है तो फाइंड आउट द मीडियन, या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, मीडियन एंड मोड, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। So this is the formula. Next is your measures of spread. Measures of spread is how your data is spread out. अगर सारा का सारा डेटा
क्लोजली पैक्ड है, हम उसे लो डिस्पर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 और 50 के बीच में है, तो वी कॉल इट एज लो डिस्पर्शन। 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 और 90 के बीच में है, जो मार्क्स है वो कुछ बच्चों के 40 है, कुछ के 50s में है, कुछ के 60s में है, कुछ के 70s में है, कुछ के 90s में है, कुछ के 80s में है। तो क्या है, जो मार्क्स है बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, स्कैटर्ड हो रखे हैं, फैले हुए हैं, वी कॉल इट एज हाई डिस्पर्शन। So this is, we call it as measures of spread. The measures of spread is range. What is the minimum value? What is the maximum value? If the minimum value is 40 and the maximum is 50, so it is low dispersion. Range is 10. Minimum is 40 and maximum is 95. So range is 55. Range कितनी हो गई? 95 minus 40, 55. So it is high dispersion. Now there is an example. If you are giving a set of data, find the mean, find the median, mode, and range. I can easily find out that this is the sum of all the observations. इन सारी values को हमें plus करना है, divide by 9 and 15. If I want to median find out करना है, तो पहले इस data को एक order में arrange करना है. यहाँ पे हमने इसको ascending order में arrange कर लिया है, और जो बीच में वैल्यू आई है वो आई है 14. तो 14 इज द मीडियन. दूसरा, इन सारे डेटा सेट में, इस डेटा सेट में 13 एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे ज्यादा बारी 13 आ रहा है, तो 13 इज द मोड. नाउ रेंज. रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू 21, लोएस्ट वैल्यू 13, 21 minus 13, 9. So this is your range. Value or another tool is variance, to identify the variance, right? The formula for the variance is, if I talk about population variance, सिग्मा स्क्वायर, आप क्या करते हो, ये जो x है ये एक वैल्यू है, म्यू इज द मीन. मैम एक बार वेरिएंस बता दो. हाँ, वेरिएंस ही बता रही हूँ. वेरिएंस जो है इट टेल्स यू हाउ द डेटा इज स्प्रेड आउट. ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पॉपुलेशन वेरिएंस, जिसमें x हो गया आपकी कोई वैल्यू और म्यू हो गया मीन. आप क्या कर रहे हो, एवरेज में से, हर वैल्यू में से एवरेज को माइनस कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो और टोटल में से डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज योर पॉपुलेशन वेरिएंस. जब हम सैंपल की बात करते हैं, तो सैंपल के केस में हमारे पास डेटा सेट स्मॉल होता है, छोटा होता है. उस केस में हम टोटल में से ना लेके, हमारे पास जितना डेटा सेट है, दैट इज सपोज हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो इट विल बी 10 minus 1. अभी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द वेरिएंस हियर. अब यहाँ पे मेरे पास डेटा है 4, 6, 8, 10, 12. आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन इज पॉपुलेशन वेरिएंस. पॉपुलेशन है तो मुझे टोटल नंबर लेना है. टोटल नंबर हेयर इज 5, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब इन सबका एवरेज क्या है, सबसे पहले मुझे एवरेज निकालना है. तो व्हाट इज द एवरेज हेयर? 8. 4,
प्लस 6, आप इन सारी वैल्यूज को पहले प्लस करो, 40 आएगा। 40 को 5 से डिवाइड करो 8, तो दिस इज योर एवरेज। एवरेज आने के बाद हर वैल्यू में से x माइनस म्यू मीन हर वैल्यू में से आपको मीन माइनस करना है। 4 माइनस 8, मीन कितना आया है 8, 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4। फिर माइनस करने के बाद सबका स्क्वायर निकालना है। -4 का स्क्वायर 16, -2 का 4, सबका स्क्वायर निकाला, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सबका स्क्वायर निकालने के बाद इन सबको हमने प्लस किया। ठीक है, प्लस करने पे अगेन 40 आया, डिवाइड बाय n, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा वेरिएंस आ गया 8। अगर यही चीज आपको कही जाए सैंपल, अगर मैं सैंपल की बात करूं, इफ इट इज अ सैंपल वेरिएंस, तो सैंपल के केस में क्या हो जाएगा 45 माइनस 1 मीन 40 over 4 10। तो आपके पास क्वेश्चन, अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो आपके पास एमसीक्यूज में तो इसी टाइप का छोटा सा क्वेश्चन होगा। आपको ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस है कि सैंपल वेरिएंस है। पॉपुलेशन वेरिएंस है तो टोटल से डिवाइड करना है, सैंपल वेरिएंस है तो n-1 करके डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, थ्योरी एग्जाम होता है, उसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस है या सैंपल वेरिएंस है। राइट, सैंपल वेरिएंस है तो n-1, पॉपुलेशन है तो n। चले आगे, किसी को इसमें से कुछ पूछना है? यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट जिसको कुछ पूछना हो? मैम एक बार सैंपल बता दो। सैंपल में देखो, सैंपल का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, हर वैल्यू को मीन में से माइनस करना है, हर वैल्यू को मीन में से माइनस करना है, स्क्वायर करना है और समेशन करना है, उनका टोटल करना है। डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है कि ये आपका n-1 हो। यहाँ पे हर वैल्यू में से मीन एवरेज को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर 16, उन सबको प्लस किया तो वैल्यू आ गई 40। लेकिन हमको सैंपल वेरिएंस निकालना है, तो सैंपल वेरिएंस के लिए मुझे क्या करना है, 40 अपॉन n-1। यहाँ पे n क्या है 5। ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो n-1, 5 माइनस 1 4। अब आप यहाँ पे 5 में से माइनस नहीं कर दो, आप n-1 कर दो, 5 माइनस 1 4 हो रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 4 10। अब देखो पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस में डिफरेंस है, अलग अलग है। पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइड बाय n, सैंपल वेरिएंस डिवाइड बाय n-1। सेम प्रोसेस है, सिर्फ n नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पॉपुलेशन में n है और सैंपल में n-1। ओके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगेन अ वेरिएशन और डिस्पर्शन। ये बताता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एवरेज से कितनी दूरी पर है। लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि डेटा पॉइंट्स आर क्लोज टू द मीन। फॉर एग्जांपल, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो का मतलब ये हो गया, हमारा एवरेज अगर 45 है तो मार्क्स जो है 43, 44, 45, 46, 47, 48। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वो हाई है तो बच्चों के मार्क्स कैसे होंगे? इफ एवरेज इज 45 तो मार्क्स विल बी
30, 31, 32, 48, 40 हो गया, दूसरा 47, 48, 50, 51, 52। सो लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि डेटा पॉइंट एवरेज के आसपास है। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एवरेज से बहुत दूर है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। पिछले क्वेश्चन में वेरिएंस था 40, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 40। अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस वाज 8 हियर, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर सैंपल की बात कर रहे हैं तो सैंपल वेरिएंस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सैंपल वेरिएंस। Next is your data scaling. Data scaling is the process which includes transforming the numerical values. आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, आप उसको स्केल अप कर रहे हो। जैसे I have taken a test out of 10 marks. मैंने 10 में से एक टेस्ट लिया। अब उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो 10 में से आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो रिजल्ट भेजना है वो 40 में से भेजना है। ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट तो मैंने 10 मार्क्स कर लिया, बच्चों के मार्क्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और मुझे अब भेजना है 40 में से। तो मैं इसको स्केल अप करूंगी, मैं ये वैल्यूज को चेंज करूंगी, 10 हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है। मार्क्स सबके चेंज होंगे। तो दिस इज वी कॉल इट एज स्केलिंग अप। हम क्या कर रहे हैं? डेटा को स्केल अप कर रहे हैं। इसी तरह से सपोज मैंने टेस्ट तो ले लिया 100 मार्क्स का, अब मुझको मार्क्स भेजने हैं 10 में से, तो मैं क्या कर रही हूँ? स्केल डाउन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मार्क्स को स्केल डाउन कर रही हूँ, डिवाइड बाय 10 कर रही हूँ। इसको हम बोलते हैं डेटा स्केलिंग। हमारे पास जो डेटा सेट है, मैं उस डेटा सेट को कुछ चेंज कर रही हूँ जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड रेंज में आ जाए। किसमें आ जाए? एक स्टैंडर्ड रेंज में आ जाए। डेटा स्केलिंग के दो मेथड्स हैं, एक है मिन मैक्स स्केलिंग और एक है जेड स्कोर स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग के केस में क्या हो रहा है कि आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो वैल्यू को बढ़ाने के लिए? जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम माइनस कर रहे हो और फिर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस ले रहे हो। ठीक है। तो जो आपकी मिन मैक्स स्केलिंग है उस केस में क्या हो रहा है? आपकी सारी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आ गई। नाउ मार्क्स ऑफ योर क्लास इज बिटवीन, भाई मैंने अगर 100 में से एग्जाम लिया है तो बच्चों के मार्क्स 0 to 100 में से ही होंगे। किसी का 0 होगा, किसी के 10 होंगे, किसी के 100 होंगे, किसी के 50 होंगे, पूरी रेंज होगी। राइट। अब मैं चाहती हूँ ये सारे के सारे मार्क्स 0 और 1 के बीच में आ जाए। अब मैं यहाँ पे किसी से ना मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना मैं डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? हर वैल्यू में से पहले 0, minimum, suppose minimum is 0 and maximum is 100. Now some students have scored 50 marks. ठीक है। तो स्केल्ड वैल्यू क्या होगी? इसको 50 को मुझे 0 और 1 के बीच में लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगी? x 50 माइनस मिनिमम एंड मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 100 माइनस 0, 50 ओवर 100 कितना हो गया? ये 0.5। 0.5। ठीक है। ये आपकी स्केल डाउन हो गई। सारे मार्क्स जो हैं वो 0 और 1 के बीच में आ गए। मैम ठीक है? जेड का
हेलो, मैम जेड का मतलब? कहाँ पे है जेड? जेड स्कोर पे तो अभी हम लोग आए ही नहीं है। अच्छा अच्छा, 0 और 1 कर रहे थे ना। हाँ, हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, जिसको हम मिन मैक्स स्केलिंग बोल रहे हैं। ओके मैम। नाउ सपोज मेरे पास मिनिमम मार्क्स हैं 10 और मैक्सिमम मार्क्स बच्चों के आए हैं 90। ठीक है, अब मुझको मार्क्स को 0 और 1 के बीच में लेकर आना है। मार्क्स है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स है। अब मुझे स्केल करना है इसको 0 और 1 के बीच में, तो मैं कैसे करूंगी? 50 माइनस मिनिमम, मिनिमम इज 10, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 90 माइनस 50, 50 माइनस 10 इज 40, 90 माइनस 50 इज मैम 40। 90 माइनस 50 इज 40, तो 1। मतलब मैक्सिमम मार्क्स तो 90 आए हैं, ठीक है। अब लेकिन मुझे हर बच्चे के मार्क्स को 0 और 1 के बीच में लेकर आना है, तो अब मैं 50 नंबर को मैं कैसे लेकर आऊंगी? तो दिस 50 मार्क्स हैज बीन रिड्यूस टू 1। इसको मैंने स्केलिंग किया मिन मैक्स स्केलिंग की तरह, तो यूज करके, तो 50 मार्क्स जो है वो 1 के इक्विवेलेंट हो गए। राइट, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। जेड स्कोर, जेड स्कोर है ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज रेंज। नाउ नेक्स्ट इज जेड स्कोर स्केलिंग, सेम करेंगे हम इसमें, बट यहाँ पे मिनिमम की जगह हम एवरेज को माइनस कर रहे हैं और नीचे रेंज की जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ले रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज है उन सबका या तो 0 एवरेज आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेड स्कोर स्केलिंग में डेटा जो है हमारा इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, इस तरीके से चेंज होगा कि उसका एवरेज आएगा 0 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। मिन मैक्स में वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। जेड स्कोर स्केलिंग में हमने डेटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, इस तरीके से चेंज किया कि एवरेज आ गया 0, राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1। So this is your Z score scaling. हो रहा है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है माइनस x बार इज योर एवरेज, y माइनस y बार इज एवरेज ऑफ सेकेंड वेरिएबल। आई हैव टू वेरिएबल्स, प्राइस ऑफ हाउस, एक प्राइस ऑफ हाउस है और दूसरा है साइज ऑफ द हाउस। ठीक है, तो माइनस एवरेज द प्राइस ऑफ हाउस multiplied by size of the house minus average size of the house divided by n. So this is your covariance.
कोवेरिएंस में आपके पास दो चीजें हो गई। अगर दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एक साथ, उसको कहते हैं पॉजिटिव वेरिएंस। जैसे घर की प्राइस इंक्रीज होगी साइज के हिसाब से। अगर 100 गज का मकान है तो 10 लाख का है। अगर वही मकान 200 गज का हो गया है तो उसकी कॉस्ट 20 लाख हो गई। अगर मकान 500 गज का है तो उसकी कॉस्ट 60 लाख हो गई। अगर मकान का साइज छोटा हो रहा है तो प्राइस कम हो रही है। इसका मतलब दोनों एक साथ या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। नेगेटिव कोवेरिएंस हो गया, एक इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने कार की स्पीड अगर तेज कर दी तो मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में टाइम कम लगेगा। अगर मैं कार से जा रही हूँ तो अगर मैंने स्पीड तेज कर दी तो, अगर मैंने स्पीड कम कर दी तो मेरे को टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। सिमिलरली अगर मैं ऑन फुट जा रही हूँ ऑफिस से घर, मैं पैदल जा रही हूँ तो स्पीड कम है, भाई पैदल चलने की स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं साइकिल से जा रही हूँ तो साइकिल से स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो गई, टाइम कम हो गया। अगर मैं स्कूटर से जा रही हूँ तो स्पीड ज्यादा हो गई, टाइम कम लगेगा। यहाँ केस में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है और टाइम कम लग रहा है। ट्रेन, हमारी इंडिया में जितनी ट्रेन चलती हैं, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव कोवेरिएंस हो गया। एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज योर कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अगेन हाउ द डेटा इज linearly related to each other. This is the formula for covariance. कोरिलेशन में हम कोवेरिएंस को यूज कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगेन कोरिलेशन अगर 1 है तो इट मीन्स दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। अगर कोरिलेशन -1 है तो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। दिस इज हाउ इफ आई टॉक अबाउट ए ग्राफ, अगर मैं डेटा पॉइंट्स का एक ग्राफ बनाऊं तो ये पॉजिटिव है, कोरिलेशन की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू हो गई -1 और यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू हो गई 0। आप देखो यहाँ पे कभी डेटा इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ का कोई रिलेशन नहीं है आपके कितने मार्क्स आएंगे पाइथन में। ठीक है, so there is no correlation, right? We call it as zero correlation. Positive correlation, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम कम हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? आपके पास कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि what is the relationship between date of birth and marks of a student? No correlation, zero. What is the relationship between the size of the house and its price? Positive correlation. What is the relation between speed of a car and the time taken? Negative correlation. ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैम कोरिलेशन के बारे में एक बार दोबारा बता सकते हैं? कोरिलेशन का मतलब है, देखो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन दोनों एक ही चीज है। कोवेरिएंस भी बताता है कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में किस तरीके का रिलेशन है। कोरिलेशन भी यही बताता है कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है,
कोरिलेशन का फॉर्मूला निकल के आता है कोवेरियंस से डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है कि आप वैल्यूज को उसके एवरेज में से माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और टोटल में से डिवाइड करते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन। दोनों का ही काम है कि दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में से का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, कोवेरियंस आपको ये बता रहा है कि वो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कोरिलेशन आपको बता रहा है कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। अगर अगर जीरो है, अगर कोरिलेशन की वैल्यू जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा। कोरिलेशन की वैल्यू अगर 0.1 है, इट मीन्स 0.1 के हिसाब से चेंज होगा। कोरिलेशन की वैल्यू अगर 1 है, हाँ जी, हेलो। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बताता है कि वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रही है या बहुत कम चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइज ऑफ 100 गज का मकान है, एक 200 गज का है, एक 500 गज का मकान है। ठीक है, अब 100 गज का मकान इज 1 लाख। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
का मकान है, 200 गज का, एक 500 गज का है ना। 100 गज के मकान की कॉस्ट है 1 लाख। 200 गज के मकान की कॉस्ट हो रही है 1,10,000। ठीक है। 500 गज के मकान की कॉस्ट हो रही है 1,15,000। अब इसमें मकान तो बिल्कुल डबल हो रहा है, साइज तो बिल्कुल डबल हो रहा है, लेकिन कॉस्ट में फर्क बहुत कम आ रहा है। इस 0.01। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका ये जो प्राइस है अभी 100 गज का मकान इज 1,02,000। 200 गज के मकान की कॉस्ट अगर मान लीजिए 10 लाख हो रही है, 1 लाख की जगह 10 लाख होती है। 500 गज के मकान की कॉस्ट हो रही है मान लीजिए 90 लाख। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मकान का साइज तो डबल हो रहा है, लेकिन कॉस्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इट इज मोर देन 10 टाइम्स। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन होगा वो कोरिलेशन आपका आ गया 0.9। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कोवेरियंस ये बताएगा कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कोरिलेशन ये बताएगा कि वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि एक एक्स वेरिएबल जो है वो डबल हो रहा है, लेकिन वाई वेरिएबल 10 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर कोरिलेशन ज्यादा है तो। ठीक है। अगर कोरिलेशन कम है तो वैल्यू तो डबल हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू बहुत कम चेंज हो रही है, बहुत ही कम। 0.10 इंक्रीज हो रही है या पॉइंट में इंक्रीज हो रही है। So this is the difference between covariance and correlation. Right? चलिए also increasing. ठीक है। This is the x variable, this is y variable. अब ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y is equals to mx plus c. ये जो स्लोप है, ये जो एंगल बनता है, इसे बोलते हैं m। और ये जो डिफरेंस है, ये जो देखो आप, ये जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट c। राइट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, ये आपका x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, एक लाइन बन रही है यहाँ से। तो ये जो आपका ये पार्ट है, दिस इज योर c। ठीक है। डिफरेंस और द कांस्टेंट, इंटरसेप्ट, और ये जो इतना इसका स्लोप है, दिस स्लोप, ये कितना नीचे स्लांटिंग में है लाइन, इसको बोलते हैं m। राइट। इस तरह से आपकी एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है। ये आपको बताती है कि x वेरिएबल और y वेरिएबल में किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास x गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो मैं y की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज योर इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, विल डू इट लेटर। नेक्स्ट, कमिंग टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, another important part is the normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेटा सेट है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखा है, आप यहाँ देखो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही होगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एक रेंज में होंगे 40, इफ दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 60। ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 40 और 60 के बीच में होंगे। एवरेज निकालूंगी तो भी 50 आएगा, मीडियन निकालूंगी तो भी 50 आएगा, और मोड निकालूंगी तो भी 50 आएगा। कुछ बच्चे होंगे जिसके, एक या दो बच्चे होंगे जिनके मार्क्स होंगे 99।
ठीक है, एक या दो बच्चे होंगे जिनके मार्क्स होंगे 0, या हो सकता है 1, 2-3 बच्चे होंगे जिनके मार्क्स होंगे 10, ऐसे ही 2-3 बच्चे होंगे जिनके मार्क्स होंगे 90। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 40 और 60 के ही बीच में होंगे। चाहे मैं उसका एवरेज निकालूं, चाहे मैं मीडियन निकालूं, चाहे मैं मोड निकालूं, सेम आएगा, राइट। so this is called as normal distribution. जनरली जो अच्छा डेटा सेट होता है, जो परफेक्ट डेटा सेट होता है, वो ऐसा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ऐसे नहीं हो सकता कि पूरी क्लास के नंबर 90 मार्क्स आ गए, सारे बच्चों के 90 मार्क्स आ गए, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, या पूरी की पूरी क्लास के बच्चों के नंबर 10 आ गए, 100 में से पूरी क्लास के बच्चों के नंबर 10 हो गए, इट मीन्स डेटा सेट इज नॉट करेक्ट, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स एक रेंज में होंगे, कुछ के बहुत कम होंगे, कुछ के बहुत ज्यादा होंगे। इसको हम बोलते हैं बेल शेप कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है उसे बोलते हैं हम बेल शेप कर्व। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एनी वन ऑफ यू? सर्कल, स्क्वायर, बेल, रेक्टेंगल? बेल शेप। ना ये स्क्वायर है, ना ये सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, क्या शेप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? बेल शेप्ड कर्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, तीनों वैल्यूज सेम रहेंगी। अब बात करते हैं स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस के केस में आप देखो, ये जो परफेक्ट बेल शेप कर्व था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, मीन कम हो गया, मीडियन ज्यादा हो गया, मोड उससे भी ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ इस वाले शेप में क्या हो रहा है, मीन कम है, मीडियन ज्यादा है, मोड उससे भी ज्यादा है। एक आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कि ये जो कर्व है ये लेफ्ट साइड में ज्यादा फैला हुआ है, तो इट इज अ लेफ्ट स्क्यूनेस। यहाँ पे राइट साइड में फैला हुआ है राइट स्क्यूनेस। तो नेगेटिव स्क्यूनेस में के केस में क्या हो रहा है, मोड सबसे ज्यादा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्राफ फैल चुका है, लेफ्ट साइड में ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स लेस देन 50 हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स लेस देन 50 है। एवरेज जो आ रही है, एवरेज जो आ रही है वो आ रही है 50 से भी कम, और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स लेस देन 50 है। यहाँ केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में डेटा स्प्रेड हो रखा है, राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा डेटा फैला हुआ है। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस में मोड ज्यादा है, पॉजिटिव में मीन ज्यादा है। यहाँ फिर से देखो, मोड के नेगेटिव के केस में मोड ज्यादा है, पॉजिटिव के केस में मीन ज्यादा है। ठीक है, ये आपका मीन है, मीन वैल्यू इज हायर देन दी मोड। जीरो स्क्यूनेस के केस में तीनों बराबर है, तो दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर लेफ्ट स्क्यूड, मोड इज ग्रेटर देन द मीडियन देन द मीन। पॉजिटिव में मीन ज्यादा है, मीडियन कम है, मोड उससे भी कम है। और जीरो स्क्यूनेस में
मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव स्क्यूनेस के बीच में क्या होता है सबसे ज्यादा, तो व्हाट इज द हाईएस्ट वन? मोड। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या ज्यादा होता है? मीन ज्यादा होता है। ठीक मीन है, होता है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्क्यूनेस को यहाँ तो हमने ग्राफ बनाया तो हमें पता चला कि ये डेटा परफेक्ट नहीं है, देयर इज सम डेविएशन इन इट, देयर इज सम डिस्टॉर्शन इन इट। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, formula. So these are the two formulas to find out the Karl Pearson coefficient of skewness. Again, इसको हम रिवाइज कर ले। स्क्यूनेस से हमें पता चलता है कि डेटा सेट कितना डिस्टॉर्टेड है, कितना डेविएट हो रखा है, कितना नॉर्मल से अलग है। ये जीरो स्क्यूनेस, ये होता है नॉर्मल डेटा सेट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव के केस में डेटा इधर फैल गया है, नेगेटिव के केस में डेटा इधर फैल गया है, लेफ्ट साइड में फैला हुआ है, और पॉजिटिव के केस में डेटा सेट राइट साइड में फैला हुआ है। राइट, ज्यादा डिस्टॉर्शन है। अगर 0.5 के आसपास है, आप देखो अगर इतना डिस्टॉर्शन है तो दिस इज लो डिस्टॉर्शन। 1 के बीच में है, अगर वैल्यू डिस्टॉर्शन की वैल्यू -1 के आसपास है तो इट इज मॉडरेट डिस्टॉर्शन, बहुत कम, ठीक है इतना डिस्टॉर्शन हुआ है। लेकिन अगर डेटा सेट 1 से बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वी कॉल इट एज हाईली डिस्टॉर्टेड डेटा। राइट, तो द स्केल ऑफ स्क्यूनेस इज, अगर 0.5 के आसपास है तो लो, 1 और 0.5 के बीच में है तो मॉडरेट, और 1 से ज्यादा है तो हम कहते हैं डेटा सेट इज हाईली डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट कर्टोसिस। कर्टोसिस इज योर टेल्डनेस। ठीक है, इसका जो ये पीक है, आप देखो ये जो पीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये ऑन एन एवरेज इस तरीके से होता है, जबकि अगर मैं बात करूं प्लैटीकर्टिक की, प्लैटीकर्टिक मीन ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे फ्लैट होता जा रहा है, फ्लैट मतलब प्लेट की तरह बनता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है। नॉर्मल के केस में मीसोक्रेटिक होगा, ना ज्यादा फ्लैट होगा ना ही ज्यादा इसे हाई होगा। लेप्टोकर्टिक के केस में जो पीक है वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड होगी, इस तरीके से ये पॉइंटेड डेटा होगा। राइट, so this is again we call it as tailedness. Tailedness means कि डेटा सेट कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। टेल्डनेस का मतलब होता है कि आउटलायर्स कहाँ पर है, यहाँ पे ये सारे आउटलायर्स हैं जो कि ग्राफ के बाहर होते हैं। ठीक है, सो इफ द ग्राफ इज फ्लैट वी कॉल इट एज प्लैटीकर्टिक, उसकी वैल्यू लेस देन 3 होती है और नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव कर्टोसिस बोलते हैं उसको। अगर नॉर्मल है तो उसे बोलते हैं मीसोकर्टिक, वैल्यू होती है उसकी 3, और जो कर्टोसिस है वो, उसको हम एक तरह से एक्सेस कर्टोसिस, जो डिफरेंस है वो 0 होता है।
लेप्टोकर्टोसिस में जो ग्राफ है वो पॉइंटेड हो गया है, वो ऊपर की तरफ बढ़ गया है। कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है और हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्टोसिस, राइट। आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 3 है तो उसे क्या बोलोगे? फ्लैटी करते। कर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 है तो व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज? एनी वन ऑफ यू? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है तो इट इज लेप्टोकर्टोसिस। Lactobacillus. With this, I am finishing off today's class. These are the different today's class, which was all about Unit 1, statistics, data, and your Python libraries. We have already discussed what are the various different Python libraries. Keras, Python. We are using NumPy in our syllabus, Pandas, and Matplotlib. Other libraries like TensorFlow, Keras, and natural language wali, PyTorch, these are used for the higher algorithms of artificial intelligence, machine learning, deep learning, and so on and so forth. ये आपका फिर से एक एग्जाम्पल बता दिया है, कुछ रिकैप कर दिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट पाइथन लाइब्रेरीज. NumPy फॉर द एरेज, Pandas for the data, Matplotlib is for the plotting of the graph. हम यहाँ ये 3 लाइब्रेरीज नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. In the last few questions for you to solve, find the mode of this. All of you solve this question. I will ask one by one. I am giving you 10 minutes for this to solve. मैम इसमें ये क्वेश्चंस करने हैं. ये अपनी कॉपी में करो and then I will ask the answers. ठीक है. तो मैम ये लाइब्रेरीज बाद में है ना? हाँ, तो क्या पूछा बच्चों आपने? लाइब्रेरी? मैम जो लाइब्रेरीज आपने बताई थी पांडास और ये सब, तो मतलब हाँ, अभी ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. NumPy, Pandas और Matplotlib ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. आज की क्लास में अभी हम बस दिस इज द लास्ट 4 क्वेश्चन. आप इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करो एंड देन फिर मैं 10 मिनट बाद आप लोगों से इसके आंसर्स पूछूंगी. 10 मिनट के बाद 10 मिनट तो लगाओगे कि कितना टाइम लोगे, या 15 मिनट? अगर हो गया है तो आई कैन आस्क नाउ ऑल्सो. यू टेक 10 minutes to solve all these 4 questions. ओके मैम.
Yes. What is the mode? ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बारी आई हुई है? मैम 35। 35। तो मोड इज 35। मीन, इसका मीन निकालो। मीन 13। ओ हाँ 13 है। सबको प्लस करो। हाँ जी, सबको प्लस और डिवाइड में जितनी है नंबर डिवाइड बाय 6। नंबर ऑफ टोटल 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 14, so it's 78. ठीक है, हाँ जी 78 divided by 6, 13। 13. इसमें मीन कितना आएगा? मैम ये जो सिंपैथिक मैम ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अरे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मीन निकालना है। 0 0 सबको प्लस करो, डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, ये जो 0 वैल्यूज हैं इनको भी प्लस करना है। मैम एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप ये देखो डेटा सेट कैसे है। 2 बच्चों का 0 है, 2 के 3 है, एक का 5 है, एक का 7 है, फिर उसके बाद 2 आर हैविंग 9, 2 आर हैविंग 12। सिमेट्रिक मतलब बराबर सा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बेल शेप्ड कर्व बनेगा। 0 0 3 3, फिर उसके बाद एक 5, एक 7 इधर आ गया, 2 9 इधर आ गया, 2 12 इधर आ गया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मीन तो इसका भी सेम ही निकलेगा ना। यू टोटल, सबको टोटल करो और डिवाइड करो। मैम 6 आएगा। 6 आएगा। 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18, 57 टोटल आ गया। 57 57 और कितना आया है? और डिवाइड करो, कितने से डिवाइड होगा? 1 2 3 4 10, so its average will be 5.7। यही आया है सबका? मैम अलग भी आया है? मैम अगर मैम मेरा तो 6 आया ना। मैम मेरे पे 6 आया है। मैम आपने प्लस में थोड़ी गलती कर दी मतलब। मैम पहले इनका ठीक है। टोटल होएगा और फिर 18 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 18 12 प्लस 12, 6 ही आया, सॉरी। टोटल इज 6। डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज इज 6। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अगर ये पूछा जाए कि इसका मीडियन क्या होगा? मैम मैम मीडियन 6 या 10 मीडियन 6 होगा। मोड क्या होगा? हाँ जी ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके केस में मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होंगे। मीन भी 6 है, मीडियन भी 6 है, मोड भी 6 है। मीडियन देखो इन दोनों का एवरेज होगा, 5 प्लस 7 का एवरेज होगा हाँ जी 6। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होंगे। आपने मीन निकाल दिया, मैम इसमें मोड मोड फिर कैसे होगा? मोड तो देखो यहाँ पे आपको मोड नहीं पता चल पा रहा है।
हाँ जो जी कि कितनी सारी वैल्यूज है, 3 भी 2 बार है, सभी 9 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है। तो अब आप क्या करोगे? मैम मोड निकालेंगे। ठीक है, या तो मोड को फॉर्मूले से निकालोगे, हाँ या तो फॉर्मूला से। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका आपने मीडियन निकाल दिया, इसका मोड, जो इसका मीन है वही इसका मोड है और वही इसका मीडियन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होते हैं। ठीक है ठीक है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा? मैम इसका मीडियन बताना है। हाँ, इसका मीडियन बताना है। इसको आप अरेंज करो और जो बीच में वैल्यू आ रही है उसको बताओ। मैम 6। मैम ये इवन नंबर्स हैं तो बीच में वैल्यू तो 8 और 9 आ रहा है। पहले तो मैम इसे सीक्वेंस में करेंगे मैम। तो हाँ जी, इसमें मीडियन क्या आया है? आपने इसको अरेंज किया, 3, जी मैम 4, 6, 7, 8, 9, 10 10, 12 13 12, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 8 या 9 5 9। इधर, 8 और 9, 8 और 9 का एवरेज कितना होगा? 8 और 9 का एवरेज 8.5, 8.5। हाँ 8.5, तो मीडियन हो गया 8.5। ठीक है, आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन से आ जाएंगे। ओके, लास्ट इज योर, दीज आर योर पाइथन लाइब्रेरीज। जब आपको इंस्टॉलेशन करना होगा तो आप ये कमांड यूज करोगे, pip इंस्टॉल numpy, pip इंस्टॉल pandas। जब आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करने के लिए आपके पास ये कमांड है। मैम एक बार इनकी पीडीएफ